Hello everyone. Today we are going to start with data structures. In data structure, we will study about the basic data type, then category of different data type, various operation on the basic data types which we'll use in data structures. So let us start with your data structure. Data structure is a group of related data which is stored in a specific manner so that it can be used in an effective way. It contains information about the data, value, relationship between the data and functions that can be applied to data. For example, books in your study rooms, spaces rack in your kitchens. Simply we can understand we are placing a book in ourselves line by line and they are in a proper orders. Or you have also seen in our kitchens there is a stack of your saucers kept in your kitchens. Then difference between data types and data structures. Data type is set of value of a given data type only. डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एक टाइप की वैल्यू सेट है, किस टाइप का डाटा उसके अंदर हमारा स्टोर होना है. अगर हम बात करें कि इन डाटा टाइप वी कैनॉट स्टोर अनदर डाटा टाइप वैल्यू. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इंट डाटा टाइप है तो उसके अंदर हम दूसरा कोई भी डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं. Then data structures is a collection of different kind of data in a single unit. डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा कि हम सिंगल यूनिट के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और फ्लोट भी वैल्यू डाल सकते हैं. इट कैन होल्ड वैल्यू एंड नॉट डाटा शो इट्स data less. It can hold different kind and type of data within one single object. Value can be directly be accessed to the data type variables. The data assigned to a data structure object using some of set of algorithm and operations. The data structure can be classified into two categories: simple data types and compound data types. In simple data type, we have your built-in data types, which is like your integer, real characters, booleans, then linear list and array. Compound data structure, when data structures clubbed together in a different ways, it make a complex data structure. There are two type of compound data structures: linear data structures and non-linear. In linear data structures, it combination of value sequence. Sequence mean to say it is a single level data structure, for example stack, queue, linked list. In non-linear data structures, these are multi-levels data structure, for example here binary tree, graph, heap has tables. Now data structures are simple data type: integer, float, string, boolean. Compound data structures: array, list, dictionary, set, files. Then again your list is your two type: linear and non-linear. In linear we have stack, queue, and non-linear we have graph and tree. So in this chapter we are focused on the list. By using list, and we can implement list in a stack and queue. So stack and queue are the main
data structures which will use in these chapters. So now operation on data structures are insertions. Insertion means to say add new data into a data structure. Then deletions, to delete a data from the data structures. And your searching, we have to search the desired data from the data structure. Then traversals to access data in all element one by one. Sortings, to arrange data element in a specific order, either in ascending order or ascending order. Then merging, to combine two same type of data structure to form a new data structure. So these are the basic operations which will be apply on your data structures. So now in Python we must use a list to implement data structures. In this chapter we are using list in structures as well as in queue. So let us understand the list. This we have already studied in class 11th, and there is a little view in different topic in class 12th. So लिस्ट म्यूटेबल्स डाटा टाइप, हम जानते हैं कि लिस्ट के है म्यूटेबल का मतलब क्या होगा कि हम इसके क्या डाटा को हम चेंज कर पाएंगे, जो एलिमेंट हैं लिस्ट के उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो हम एलिमेंट लिखेंगे वो हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आइटम होंगी और मेन रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। The important thing about list that item needs not to be same type. इसमें क्या होगा कि सिंपल लिस्ट के अंदर क्या था, हमने ये कहा कि वो सिर्फ सेम टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक या क्यू के अंदर तो हम सेम नाम के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये सिंपल एम्प्टी लिस्ट है, ये कौन सी इंटीजर है, इसमें ये कौन सी है स्ट्रिंग है, और ये क्या है, दिस इज कंपाउंड, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है। और ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें क्या है, एक में 1 2 3 एलिमेंट है, इसी में दूसरा एलिमेंट है 4 5 6, देन ABC है, देन 7 8 है, और इसके बाद क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो अब हाउ टू इनपुट वैल्यू इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर वैल्यू किसके करेंगे, सिंपल L स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, तो ये हमारे वैल्यू रह जाएगी। देन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम यूज़ डिफाइंड वैल्यू, हम एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से ये जो लिस्ट L है इसके अंदर वैल्यू को इनपुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर I इन रेंज 0 to n, कहाँ तक, जहाँ तक n होगा वहाँ तक जाएगी वैल्यू, एलिमेंट इज इक्वल टू इंट इनपुट मेथड को हम यूज़ कर लेंगे। और ये जो L है लिस्ट डॉट अपेंड मेथड आपको पता है, हमने पढ़ा था, टू ऐड एलिमेंट इनटू अ लिस्ट, देन प्रिंट L, और उस लिस्ट को हम प्रिंट कर लेंगे। देन लिस्ट इंडेक्सिंग, हमने जल्दी से रिकैप करते हैं इसको। लिस्ट आर स्टोर्ड एज द इंडिविजुअल यूनिट इन अ contiguous locations. List can be accessed with to वे। फॉर एग्जाम्पल्स ये हमने लिखा पाइथन का हमने इस फॉर्म कहाँ से लेफ्ट टू राइट हम मूव किया, 0 1 2 3 4 up to 5। देन सेकंड वे है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो इसका इंडेक्स करेंगे -1 -2 और -6। तो अगर हम वैल्यू -6 लेते हैं या 0 लेते हैं तो दोनों केस में इसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे हम बात करते हैं ये नेम 0 इंडेक्स इज इक्वल टू P, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम -6 तब भी हमारे पास इसका जो एड्रेस रहेगा वो जो एलिमेंट स्टोर है वो T आएगा।
तो डिफरेंट टाइप के आपको बस ये आपने देख लिया ये। देन स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आपने पढ़ा था, क्या करेंगे। स्लाइसिंग का मतलब है कि आपने अ पार्ट ऑफ मतलब क्या है कि लिस्ट का कोई भी हम पार्ट को उसको एक्सेस करना है। तो लिस्ट स्लाइसिंग मीन अ पार्ट ऑफ लिस्ट कंटेनिंग सम कंटिन्यूस कैरेक्टर्स फ्रॉम द लिस्ट। इसमें हमने यह ध्यान रखना है, स्टार्ट है, स्टॉप है, स्टेप है। So which means that the slicing will start from the index start and will up to go to stop in the step of steps. So default value of start is 0, stop is the last index of the list, and for step it is 1. So colon stop is, but this it means it will slice the element from the starting to till stop. If we are start columns, this will slice the list from the start index till the end negative value of step, showing in the right to left traversals instead of left to right. So traversals that way, that is why colon -1. So this print the reverse order of the list. Then ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको स्लाइसिंग का है। लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, प्रिंट लिस्ट कर लिया, लिस्ट किया 1 to 5। तो 1 to 5 क्या करेगा यहाँ से, ये हमारे पास वन इंडेक्स नंबर है, 0 है तो 4 5 और ये हमारे पास 9 तक ये ले लेगा। देन प्रिंट लिस्ट 5 to 8। अब ये करेगा स्पेसिफिक, कहाँ से 5 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 9 से लेके आगे 9। सो ये करेगा 11 and 14। देन लिस्ट 1 कहाँ 4 से लेके एंड तक। देन लिस्ट कॉलन 5 क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेके 5 तक। देन प्रिंट लिस्ट 1 to 8 2। अब 2 क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2। तो क्या किया, 1 किया, 1 के बाद 2 काउंट करेगा, 2 काउंट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 1 के बाद ये छोड़ दिए, फिर क्या जाएगा ये आगे, और इसको आगे ये छोड़ दिए, फिर क्या जाएगा हमारे पास 11। देन प्रिंट कॉलन -1 में क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में 11 14 11 9। सो दिस इज द वे। एंड देन लिस्ट प्रिंट लिस्ट -9 कॉलन 4 कॉलन -2। So this way we can slicing the elements. Now how to access the list. Accessing individual element, the list element can be accessed through their indexes. For example, L list 0 10 25 36 27 29. So L3 we will print out, it will print 0 1 2 3, mean to say L3 means the fourth element of the array. Then L2 -2 from right to left, -2 is 27. So accessing element in one go, print L entire element. Then traversing of list, so we can traversing a list to access the and process each element individually. For I in L, print I, so it will print 1 by 1 element of the list. Then member operators, so there are two membership operators, in and not in. In returns the true if value present in the list, otherwise false. Not in, it return the value if a value is not present in a list, otherwise false. For example, L is equal to 10 25 36 27 29. Int
inter element that you want to search. Print A in L. Print A not in L. Then inter element to search we have inputting 5 false. Then not in this is true. So this will your membership operator works, that is in and not in. Then operator in list. Operator in list there are two mathematical operator that can be used with the list as plus and asterisk. Now plus is used as indicate, that is join operator. Simply we are using plus operator to join the two list. So this is L, this is L1, L2 is equal to L plus L1, print L2. So this will combine the element of both the list. Asterisk it is used to replicate or repeat the list. Simply this is your list 1, list 2, then list 2 is equal to list 1 plus list 1, print L into 4. Now L2 is the element of this group, L and L2. So 10, 25, 36, 27, 29, 4, 5 or 6. It will repeat 4 times. So plus operator requires both the value should be in the list type, and operator is one list and one integer value. Then list comprehensions. Comprehensions. List comprehension is an elegant way to define and create a list in a Python. So we can create a list just like your mathematical statement and in one line only. The syntax of comprehension is easiest to grasp. A list comprehensions generally consist of these part: output expression, input sequence, variables representing the member of input sequence, and an optional predicates parts. For example, list x in start 2 for x in range 1, 11. If x modulus 2 is equal to 1, list is equal to 1, 9, 25, 49, 81. Here you can see this is the x mean to say the element of the list. So it will scale the element, that element. Here we have but x modulus 2 is equal to 1. यहाँ पे क्या होगा कि जिनका रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा उन नंबर का ये क्या करेगा, स्क्वायर करके हमें बता देगा. सो नो x डबल स्टार 2 या पावर 2 इज आउटपुट एक्सप्रेशन रेंज 1, 11 as input sequence, and x is a variable, and if x modulus 2 is equal to 1, it is predicate part. So this is your predicate part, this is your range, and this is your output. So ln, if n less than 1, else n into 2 square 2 for n in range 1, 10. So it will return 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 and 18. So colon is not required with if else statement. Simply if less than 5, else and squares. So simply 5 तक आगे हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या किया उसने कि जो n थी n को उसने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से. तो वैल्यू में उसके कितना 12, 14, 16 और 18. बिल्ट इन फंक्शन इन लिस्ट के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन इंडेक्स फंक्शन है,
ठीक है, इट विल गिव द नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इसमें क्या होगा कि जो इंडेक्स के ऊपर हम सर्च करेंगे तो जो हमारे पास लिस्ट में पहले मैच कर जाएगा एलिमेंट उसको वो रिटर्न कर देगा हमारे पास। तो ये लिस्ट है, लिस्ट डॉट इंडेक्स 8। अब 8 के लिए कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 3। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये हमने लिखा एल डॉट इंडेक्स 8। अब इन 8 के लिए हम इंडेक्स फाइंड आउट करना, तो उसमें क्या बोला कि जहाँ वो सबसे पहले मैच करता है तो उसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे 0 1 2 के ऊपर 8 आ जाएगा। सो अपेंड मेथड जो है इट विल ऐड एन एलिमेंट इनटू एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल है। इसमें एल डॉट अपेंड 6, तो ये क्या करेगा, प्रिंट एल, तो ये लास्ट में हमारे पास 6 ऐड कर देगा। देन एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, यूज टू ऐड मल्टीपल और अ सीक्वेंस टू अनदर लिस्ट। ये दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एक्सटेंड 2। सो लिस्ट 1 2, तो ये दोनों हमारे पास अलग से लिस्टें। जब इंसर्ट है, यूज टू इंसर्ट एलिमेंट ऑन अ गिवन पोजीशंस। अपेंड क्या करेगा, लास्ट में करेगा, और जो इंसर्ट है जो हमने पोजीशन को स्पेसिफाई किया उस पोजीशन के ऊपर वो ये इंसर्ट कर देगा। इसके लिए देखेंगे L2 है 4 5 6, प्रिंट L2, देन वी हैव योर लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट 0 3, प्रिंट L2। देन इट विल पोजीशन कौन सी है, 0 और वैल्यू कितनी है 3। तो ये 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 4 से पहले कितना 3 ये इंसर्ट कर देगा। देन पॉप है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो हम कहाँ इसमें स्टैक के अंदर यूज़ करेंगे। पॉप इज यूज टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। द इंडेक्स शुड बी गिवन इन द functions. If no index is specified, it remove and return the last value in the list. लिस्ट हमने हमारे पास थी प्रिंट लिस्ट 2 3 4 5 लिस्ट 2 डॉट पॉप 0। तो ये जो इंडेक्स दिया उसका करे लिस्ट पॉप, और क्या किया L2 डॉट पॉप सिंपली यूज़ किया तो सारे उसने लास्ट एलिमेंट है। देन रिमूव मेथड यूज टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट, कि जो हमारे पास लिस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू अकर करेगी जिसको हमने जो रिमूव करना है उसको रिमूव कर देगा। तो रिमूव 1 के अंदर हमारे पास ये क्या करेगा, जो लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट जो 1 है उसको रिमूव कर देगा यहाँ पे ये। देन क्लियर मेथड्स यूज टू रिमूव ऑल द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट एंड द लिस्ट विल बिकम एम्प्टी। सो L इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 4 2 4 3 list dot clear list print L will clear the element. Then count method used to return the number of occurrence of the value passing as an argument. If the given value is not present, it will return 0. तो लिस्ट हमारे पास है 1 2 3 1 4 2 4 3 1 4 3 L डॉट काउंट 1। अब काउंट कहाँ है इसके ऊपर करेगा, तो ये क्या करेगा, कितने काउंट 1 कितने हैं इस लिस्ट के अंदर 1 2 3 टू रिटर्न 3, काउंट 4 हम यहाँ से 1 और 2 और 3 हमारे पास। देन रिवर्स यूज टू रिवर्स द मैटर्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट। देन ये एलिमेंट है L डॉट रिवर्स यूज़ किया प्रिंट L, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिवर्स हमारे पास लिस्ट को यूज़ कर लेगा। तो ये काम हम स्लाइसिंग के साथ, लेकिन वहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्ट स्टॉप और -1 हमें देना पड़ेगा इसमें। देन सॉर्ट यूज टू सॉर्ट द वैल्यू ऑफ द लिस्ट, डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। टू सॉर्ट अ लिस्ट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव टू यूज़ द रिवर्स इक्वल्स ट्रू और फंक्शंस। सो लिस्ट है लिस्ट डॉट सॉर्ट L, तो ये हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 करके रिवर्स L डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट L। तो ये हमें क्या करेगा, ये जो लिस्ट थी इसका रिवर्स करके हमें रिटर्न कर देगा। देन मैक्स फंक्शंस का यूज टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू पासिंग in the argument. Then minimum functions used to compute the minimum of the value
pass in argument, then sum function, this function used to find the sum of numbers in a list. So this is our list 10, 25, 36, 27, 29. Then maximum value is max L, minimum L, and sum L. So it will return maximum value in the list 36, minimum value 10, then sum of list is 127. So next your nested list. So here we have a list 1, 2, square bracket 3, 4, then again square bracket 5, 6, then comma 7, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 8, 9. तो इस केस में हमारे पास जो बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ये कितना है 0 और 1. ये जो है हमने इसकी जो एलिमेंट है ये लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. अब ये कैसे हमारे पास स्टोर रहेंगे इसको देखते हैं. 0 और 0, 1 ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा. देन 3, 4, 3, 4 अगेन 0 और फर्स्ट एलिमेंट. देन 5, 6 के लिए अगेन नेक्स्ट है 0, 1, 0, 1 के अंदर 2. ठीक है, तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स 2 और ये इंडेक्स नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट कितना है ये स्टोर रहेंगे कौन से 3, 4 और 5, 6. देन 7, 3 और 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ तक जो है वो क्या रहेगा ये एक ही लिस्ट है. इस लिस्ट के अंदर ये है और ये सारा इसके अंदर है 8 और 9, 4. सो L0 1 आ जाएगा. ठीक है, L1 = 2 आ जाएगा. ठीक है, L2 का मतलब क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा ये 2, 0. ठीक है, 2, 0 के ऊपर 3 आ जाएगा. देन 2, 1, 2, 1 के अंदर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. ठीक है, आगे 2, 2, 2, 2 के अंदर कितना आ जाएगा 2, 2 के अंदर हमारे पास आएगा कितना L2, 2, 2 और 0. ठीक है, विच इज इक्वल टू 5. ये L2, 2, 0, 5. देन L2, 1 के अंदर 6 आ जाएगा. देन L2, 3 कहने का मतलब कितना है हमारे पास ये कौन सी थर्ड जो 2, 3 = 7. देन 3 L3 = 8 एंड L4 = 9. सो ये हमारे किस ढंग से डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर होगा. देन वी आर स्टार्टिंग विथ योर स्टैक. इट इज़ द linear list data structures in which the data element can be accessed at only one end called top. इम्पॉर्टेंट है ये कि हम डाटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे ओनली वन एंड, और वो एंड रहेगा टॉप. अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग टॉप का मतलब क्या होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा. अगर हमारे पास ये बुक्स हैं, बुक्स को 1 बाय 1 हम ऊपर रखते हैं तो जो सबसे टॉप के ऊपर बुक होगी वो उसको हम सबसे जल्दी एक्सेस करेंगे. तो स्टैक के अंदर जो हम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं वो आता है LIFO. LIFO का मतलब होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल अ स्टैक ऑफ बुक्स bangles in your mother's hands, so undo operations in the bird like. So operations in which can be implemented on the stack are push mean to say add new element at the top. जब हम push फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि इससे हम एलिमेंट को ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हमारा मेथड पड़ा. कौन सा मेथड कि अगर लिस्ट के एंड में करना है तो अपेंड मेथड्स हैं, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर आपने डालना है तो इंसर्ट मेथड्स. तो यहाँ पे मोस्टली हम यूज़ करेंगे अपेंड मेथड्स. पॉप इट मीन्स डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, कि टॉप से एलिमेंट को हमने डिलीट करना है. देन पिक इट एक्सेस द एलिमेंट इंसर्ट इन द लिस्ट. लिस्ट के अंदर वैल्यू को क्या करेंगे एक्सेस करने के लिए हम लोग एक मतलब स्पेसिफिक वैल्यू. अब ये हमारे पास है एक एग्जांपल
जो स्टैक है 56, 45, 67, 89, 90, 12, 15, 5, 6, देन 8। ठीक है, तो इंसर्शन नेक्स्ट जब इंसर्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8, 8 के बाद आगे यहाँ पे जाएगा। डिलीशन करेंगे तो टॉप से ये पहले 8 जाएगा, फिर कौन सा 6, 6 के बाद 5 इन द अप टू हम 56 तक पहुँच पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। एस स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिया, टॉप इज इक्वल टू नन, कुछ नहीं है। फंक्शन लिया पुश, पुश का मतलब क्या है, हमने इंसर्ट करना है। तो ये हमने लिखी है वैल्यू इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर टू बी इंसर्ट इन स्टैक, देन एस डॉट अपेंड वैल्यू, टॉप इज इक्वल टू लेंथ एस माइनस 1, देन पॉप स्टैक, पॉप मतलब डिलीट करना है। डिलीट करने के इफ़ एस इज इक्वल टू एम टी, कहने का मतलब है कि अगर स्टैक हमारे पास क्या है, खाली है, तो प्रिंट स्टैक इज एम टी, एल्स आई इज इक्वल टू एस डॉट पॉप प्रिंट डिलीट एलिमेंट कॉमा आई, देन डेफ पीक फंक्शन हमने यूज़ किया। इफ़ एस इज इक्वल टू एम टी, स्टैक इज एम टी, एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ एस माइनस 1, print the last value is at s top, then display, so s is equal to, if s is equal to empty, print stack is empty, else I len s, so while I greater than 0, so print s I minus 1, then I minus minus। तो ये क्या करेगा, हमारे डिस्प्ले करेगा। अब हम मेन फंक्शन के अंदर सी इज इक्वल टू बाई, वाइल सी इज इक्वल टू बाई, प्रिंट इंटर 1 फॉर इंसर्शन, प्रिंट 2 फॉर डिलीशन, प्रिंट 3 फॉर पिक, प्रिंट 4 फॉर डिस्प्ले। सो नाउ n इज इक्वल टू इंट इनपुट योर choice if n is equal to 1, push functions, l if n is equal to 2, pop stack, l if n is equal to 3, peak functions, l if n is equal to 4, display function, else print a wrong choice, c input, do you want to continue or no, if yes then press buy। So this is all about your stack. We will do the practically in the next sessions. So after watching this video, you have to attempt a small MCQ type assignment which is related to your stack. So we will meet with practical sessions of stack sections in next class. Thank you, have a good day.